Hello everyone, welcome to my channel Train Brain. Before starting the lecture, I request you all to watch the complete video, share with your friends who are also preparing any competitive exams like SSC, UPSC or any other. Because in this video I am going to share my notes of current affairs and I am sharing the notes from January 2022. All the articles I will cover and explain why it is in news, what are the aims of that article or any policy and benefits, challenges, way forward and many more things. I will explain every article on the basis of mains exam pattern. Okay, so whoever is preparing for any competitive exam, please watch the complete video, and if you feel that this video is helpful to you, please don't forget to click on the like, comment and subscribe icon. Okay, so starting from January 2022 current affairs, first article is digital rights. As we all know, in the starting of the January 2022, we have seen that this article was in news, digital rights. Okay, so basically first thing we have to explain that why it is in news. डिजिटल राइट हमारा न्यूज़ में आया था, बट ये आर्टिकल क्यों न्यूज़ में आया था? क्योंकि यूरोपियन कमीशन रिसेंटली प्रपोज्ड अ सेट ऑफ द डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स. यूरोपियन कमीशन ने एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और राइट्स थे जो कि डिजिटल राइट थे, उनको प्रपोज किया था. इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल सोसाइटी एंड वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट. Okay, so basically it was an extension of the Berlin Declaration on the Digital Society and Value-Based Digital Government. Okay, what was the aim of that policy was that to strengthen the digital participation and digital inclusion. As we have seen that due to the pandemics, there were a lot of the changes in many things like related to education or health. Basically everything is like digitalized. So for that it was like digital rights article. It was in news about digital rights. What are the digital rights? They are basically related to the freedom of expression, privacy that allow the people to access, use, create and publish digital media. It is an extension of the rights set out in the Declaration of Human Rights. Aims: protect the people's rights and support democracy, provide a guide for the policymakers and companies. Principles: what were the main principles of that policy, digital rights policy? People at the center. First thing is people at the center. Second, safety and security. Third, freedom of choice. Fourth, solidarity and inclusion. Fifth, participation. Sixth, sustainability. I hope this is clear to you because these are the very simple keywords and everyone can understand it. Concerns and challenges related to the digital rights. First thing was digital divide. Second, vulnerable to the misuse. Third, rising inequalities. Fourth, lack of focus on the child rights. Fifth, privacy issues. Sixth, violation of the human rights. Why was the need of digital right? Simply, first thing, protection of the privacy and personal data. Digital transformation of the businesses. Enhancing the trust of individuals. One of the most important things, tackling the pandemics as COVID-19. Promoting digital democracy. Supporting isolated, low density, low income and outermost regions. Promoting responsible and secure data management. Initiatives taken for the digital rights by the government. Internet Bill of Rights, Brazil. Paris call for safe and secure cyberspace. Christchurch call to eliminate terrorist and violent extremist content online by New Zealand government. India's Personal Data Protection Bill. General Data Regulation Protection, European Union. National Policy on Universal Electronic Accessibility by India. It can be asked in the prelims exam that what were the initiative taken for the digital right by the Indian government. So basically it may be given in the options like National Policy on Universal Electronic Accessibility by India and India's Personal Data Protection Bill. By the civil society, initiative taken for the digital right. First, Manila Principles for the Intermediaries Liability, Universal Guidelines for Artificial Intelligence, Delhi Declaration for the Just and Equitable Internet, Charter of Human Rights and Principles for Internet. Others, Asilmore Artificial Intelligence Principles. What is the way forward regarding the digital right? Human Centered Technology. सबसे पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान में रखनी होगी कि ह्यूमन सेंटर टेक्नोलॉजी होना चाहिए. एज वी ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रिंसिपल, फर्स्ट थिंग वाज दैट पीपल एट द सेंटर. सेकंड थिंग, लिमिट द कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ द पर्सनल डाटा. जो हम कलेक्ट करते हैं डाटा या फिर जो यूज़ करते हैं पर्सनल डाटा, उसको लिमिट में रखना चाहिए. थर्ड वन, इस्टेब्लिश द डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी. एंड फोर्थ वन वॉज रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रीन एंड द डिजिटल टेक्नोलॉजीज. I hope this article is clear to you. Article is online campaigning. Why in news? Due to ongoing pandemic and associated health risk, recently Election Commission put the restrictions on the physical rallies while allowing virtual campaigns.
जो पैंडेमिक इस टाइम पे कोविड-19 चल रहा था और भी बहुत सारे हेल्थ रिस्क थे, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया था कि फिजिकल रैलीज़ नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने वर्चुअल जो कैंपेनिंग होती है यानी कि ऑनलाइन थ्रू द सोशल मीडिया वगैरह, उन्होंने परमिशन उसकी अलाउ करी थी, बट फॉर टेम्पररी. About online election campaigning. First of all, we should know that what is election campaigning. It is a means by which the candidate prepare and present their ideas on the current issues to the voters. And what is online campaigning? Not only includes the promoting the political parties or the electoral campaign materials through the social media, but also includes audio messages, phone calls, videos, and LED screen mounted vans, etc. What are the benefits of online campaigning? Large audience. First. Second, analytics. आप एनालाइज कर पाते हैं कि कौन सा ऐसा इशू है जिस पे पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है. थर्ड वन, फीडबैक और इंगेजमेंट. फोर्थ वन, डायरेक्ट कनेक्ट बियॉन्ड कैंपेनिंग. आप जो है जो पब्लिक है उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं बियॉन्ड कैंपेनिंग. आपको किस चीज़ से इशू पे ज़्यादा पब्लिक रिस्पॉन्स कर रही है आपको ये पता चल सकता है और आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, हर एक से कनेक्ट हो सकते हैं. फिफ्थ वन, कोविड-19 रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स. सिक्स वन, बेनिफिट पॉलिटिकल द न्यू कमर्स. सो जो न्यू कमर्स हैं उनको भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा पहुँचा था ऑनलाइन कैंपेनिंग से. Their confidence was boosted. Concerns against the online election campaigning. Regulation of online campaigning. Transparency concern. Campaigning on veg issues like immigration and welfare related issues. Tracking the source of financing. कौन सा एडवर्टाइजमेंट कहाँ से यानी कि इंटरनेशनल से हेल्प मिल रही है, कहाँ से उसको हेल्प मिल रही है फाइनेंसिंग, इसके लिए भी थोड़ा सा कंसर्न था. रोल ऑफ इंटरमीडियरीज. प्राइवेसी कंसर्न थे. डिजिटल डिवाइड का कंसर्न था. डिसएडवांटेजेस टू द स्मॉलर पार्टीज़, ज़्यादा नुकसान पहुंचा था. सोशल मीडिया रेगुलेशंस बाय द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया. तो कैसे रेगुलेट करा था बाय इलेक्शन कमीशन इन इंडिया ने? सबसे पहले क्या होता है, कैंडिडेट नीड टू सबमिट द ऑथेंटिक सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल. ठीक है, कैंडिडेट को सबसे पहले जो ऑथेंटिक सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल होती है वो सबमिट करना होता है. फिर रूल्स ऑफ द प्री सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स आर एप्लीकेबल. Okay. Third, provisions of the model code of conduct are applicable on the content posted. Fourth, inclusion of the social media expenditure in the final expenditure statement. Fifth, social media cell set up by the Election Commission of India for monitoring. Okay. Way forward, personal data use should be scrutinized. Responsibility of the social media platforms to avoid hate speech, to prevent violence or abusive words. This may be the responsibility of social media platforms also to prevent these type of things. Update regulation methods. मेंटेन अ लेवल प्लेइंग फील्ड. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाली पार्टी सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकती है अपना कंटेंट और ये वाली पार्टी फेसबुक पे अपना कंटेंट पोस्ट कर सकती है. नहीं, सबके लिए इक्वल होना चाहिए. सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ इन जर्नलिज्म शुड बी इनकरेज्ड. रिलेटेड न्यूज़. इनसे रिलेटेड भी न्यूज़ थी. एक, इलेक्शन कमीशन हैज़ इनहेंस्ड द इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स. जो पहले एक्सपेंडिचर लिमिट होती थी उसको भी उन्होंने इन्हांस कर दिया था. पहला तो एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम 70 लाख to 95 lakh फॉर द बिगर स्टेट्स एंड रुपीज़ 54 lakh to 75 lakh इन स्मॉलर स्टेट्स. फॉर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज एक्सपेंडिचर लिमिट हैव बीन इन्हांस्ड फ्रॉम रुपीज़ 28 lakh to 40 lakh इन द बिगर स्टेट्स एंड रुपीज़ 20 lakh to 28 lakh इन स्मॉलर स्टेट्स. कैंपेनिंग से रिलेटेड और एक और चीज़ इससे रिलेटेड ये भी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टपोन द पंजाब असेंबली पोल्स इन व्यू ऑफ गुरु रविदास जयंती सेलिब्रेशंस. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि अंडर सेक्शन 153 ऑफ द RBI रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट इन इंडिया 1951 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन एक्सटेंड द टाइम फॉर कंप्लीटिंग एन इलेक्शन. ओके, सो कमिंग टू द थर्ड आर्टिकल विच वॉज इन न्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स. वाई इट वॉज इन न्यूज़? अब ये भी हमें मालूम है, जनवरी साइड में थोड़ा सा पैंडेमिक से रिलेटेड इलेक्शन वगैरह भी हुए थे और उनसे रिलेटेड ऑनलाइन कैंपेनिंग भी हुई थी और ऑनलाइन कैंपेनिंग के लिए डिजिटल राइट्स वगैरह से रिलेटेड था. तो ये तीनों आर्टिकल थोड़ा बहुत आपस में रिलेटेड हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ है. अगर आप कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज़ में क्यों था. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वाई इट वॉज इन न्यूज़. सेकेंड थिंग, जो आर्टिकल के बारे में बात हो रही है आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए. लाइक अगर यहाँ पे हमने पहले बात करी थी डिजिटल राइट की, तो हमने सबसे पहले बताया था कि न्यूज़ में क्यों था और डिजिटल राइट है क्या चीज़, फिर उसके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर उससे रिलेटेड चैलेंजेस कंसर्न्स क्या हैं, फिर उसके प्रिंसिपल क्या थे, एंड देन वे फॉरवर्ड. सिमिलरली फिर हमने ऑनलाइन कैंपेनिंग की बात करी थी. सबसे पहले हमने ये बात करी थी कि वाई इट वॉज इन न्यूज़. फिर ऑनलाइन कैंपेनिंग, इलेक्शन कैंपेनिंग होता क्या है, फिर ऑनलाइन इलेक्शन कैंपेनिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कैंपेनिंग, व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय the government in doing the online campaigning, and also we have discussed the way forward in online campaigning. Similarly, electronic voting machines, why it was in news and what is electronic voting machine, difference between the EVM and VVPAT, and what are the benefits of using the electronic voting machines and what are the challenges faced in electronic voting machines. Way forward, इस तरीके से आप अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं. लाइक अगर कोई भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो एक उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखकर ही आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं. ऐसा नहीं आपने कहीं से उठाया कुछ भी ऐड कर दिया, नहीं. मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो बिकॉज आई एम शेयरिंग माई नोट्स इन अ वेरी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. रिलेटेड थिंग दैट
what can be written in the answer. और जो मैंने आंसर राइटिंग करी है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको ये प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा उसको रटें या फिर उसको एक एक वर्ड बाय वर्ड, नहीं, बस आप एक बार पूरी वीडियो को देख लें, समझ लें, मैंने जो कंटेंट आपको शेयर करा है इसको रीड कर लें, अपने आप ही आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि यार ये तो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके, क्या नुकसान इसके हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस फेस करे जा सकते हैं और ये इससे रिलेटेड क्या चीज़ हो सकती है। आपको अपने वर्ड्स में लिखो, ज़रूरी नहीं है कि जो वट एवर आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, लर्न एवरीथिंग, लर्न एवरी वर्ड, वट एवर आई हैव रिटन इन माई नोट्स, देयर इज़ नो नीड ऑफ जस्ट मगिंग अप एवरीथिंग वट आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। जस्ट गो थ्रू द video, understand what I am sharing with you all and write it in your own words. Try to write every article in your own words. This will be helpful to everyone. So coming to our topic, electronic voting machine, why it was in news. Citizens Commission on Elections report on EVMs and VVPAT was released recently. ठीक है, सिटीजन्स कमीशन ने एक इलेक्शंस रिपोर्ट और ईवीएम और वीवीपैट पर रिलीज़ करी थी, जिसकी वजह से ईवीएम न्यूज़ में आ गई थी। अबाउट ईवीएम, ईवीएम होता क्या है? बेसिकली इट इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें 2 यूनिट होती है, कंसिस्ट ऑफ द 2 यूनिट्स, एक होती है कंट्रोल यूनिट, दूसरी होती है बैलेटिंग यूनिट। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर द इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट रन्स ऑन एन ऑर्डिनरी बैटरी असेंबल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन प्लस इन कोलैबोरेशन विद द 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, और इन दोनों पब्लिक सेक्टर के नाम याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ईवीएम जो होती है वो उसमें रन करती है ऑर्डिनरी बैटरी पे और वो असेंबल करी जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी है। कौन से? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलोर में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद में है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आता है। They were first used in the Parur Assembly constituency of Kerala in 1982. Use of the EVM in an election is legal. In 1988, a new section 61A was inserted in Representation of People's Act in 1951, empowering the Election Commission of India to use the EVM. It can record maximum 2000 votes. थोड़ा सा ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक बारी इनको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको लर्न हो जाएगा कि रिलेटेड टू EVM. EVM can cater to a maximum of 64 candidates including the nota. Nota मतलब किसी को भी वोट नहीं देना. There is provision for 16 candidates in one balloting unit. Benefits of EVM: made the process simpler, टाइम को सेव करता है और प्रोसेस भी बहुत ईजी हो जाता है. Secure the standalone machine. I hope this is clear to you all. Very easy words. Quick counting process, sample headline, discourage the booth capturing, huge savings, more authentic. What are the challenges or concerns against EVM? Susceptibility to fraud, global precedence, lack of secrecy, storage and counting concerns. Now, conclusion. Election Commission should address the concerns raised by the stakeholders and should bring in more transparency regarding the credibility of EVMs in conducting free and fair elections. I hope this is clear to you all. बहुत easy words में था और मैंने कोशिश करी आपसे हर एक चीज़ को शेयर करने की, बेनिफिट्स भी, कंसर्न्स भी, कंक्लूजन भी, ऑल वीवीपैट. नाउ अबाउट वीवीपैट. It is another independent machine attached to the EVM which helps the voter to verify the vote. आपने देखा होगा जब आप वोट करने जाते हैं, जो भी 18 से अबव होंगे, जो जब वोट करने जाते होंगे तो उन्होंने देखा होगा एक कंट्रोल यूनिट अलग होती है, बैलेटिंग यूनिट अलग होती है, वो पूरा पार्ट होता है EVM का. और वीवीपैट मशीन अलग होती है जो कि एक वायर से कनेक्टेड होती है EVM से, बट ये इंडिपेंडेंट मशीन होती है जो कि EVM से अटैच होती है थ्रू द वायर, विच हेल्प्स द वोटर टू वेरीफाई द वोट. आपको वहाँ पे पता चल जाता है कि आपने किसको वोट डाला है. आफ्टर कास्टिंग अ वोट, अ स्लिप इज प्रिंटेड विच कंटेन्स सीरियल नंबर, नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट एंड इज विजिबल थ्रू अ विंडो फॉर 7 seconds. Post this, the printed slip automatically falls in the sealed drop box of VVPAT. Concerns against the VVPAT: vulnerable to the malfunction, prone to hacking, response time for electors to verify his or her vote is less. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि why election commission says India's EVMs cannot be hacked. First thing is that 275 safety protocols make the EVMs tamper-proof. No internet part, so no means to receive Wi-Fi, Bluetooth, wireless signal. Malfunction easily detected. EVM chips writable only once. Serial number of switch allotted to the party may vary from constituency to constituency. Produced and processed under the sanitized conditions. Starting with our 4th article, local reservation in the private sector. Why it was in news? Haryana government has challenged in Supreme Court the order by the Punjab and Haryana High Court to halt 75% quota in private jobs for the locals. I hope this is clear to you. More on news. Haryana State Employment of Local Candidates Act 2020 came into force on 15 January 2022. हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 में लॉ बनाया गया था, जो कि फोर्स में आया था 15 जनवरी 2022 में. इट प्रोवाइड्स फॉर द 75% रिजर्वेशन टू द लोकल यंगस्टर्स इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स दैट ऑफर्स मंथली सैलरी ऑफ लेस दैन ₹30,000. इट कवर्स द प्राइवेट कंपनीज, ट्रेड्स, सोसाइटीज, पार्टनरशिप, फर्म्स, etc. अदर देन हरियाणा, अदर मॉडल्स.
कौन से अदर स्टेट थे जिन्होंने ये भी कोशिश करी थी कि उनके यहाँ भी रिजर्वेशन होना चाहिए लोकल्स के लिए? महाराष्ट्र ने, एमपी ने, आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटका ने ऑल्सो ट्राई टू रिजर्व द जॉब्स फॉर द लोकल्स बट रन इनटू हर्डल्स। आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट। अब मैं कोई भी अगर आर्टिकल डिस्कस कर रही हूँ तो उसके सपोर्ट में भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा और अगेंस्ट में भी, यानी उसके बेनिफिट्स भी बताने पड़ेंगे और उससे रिलेटेड कंसर्न्स और चैलेंजेस भी मुझे बताने पड़ेंगे। सो आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट। स्टेप टू प्रोवाइड द राइट टू एम्प्लॉयमेंट। ओके, हरियाणा गवर्नमेंट कहती है कि एक तरीके से स्टेप है टू प्रोवाइड द राइट टू एम्प्लॉयमेंट। द लॉ मेयरली मेक्स द जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन विच इज़ परमिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, डीलिंग विद द श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट्स opportunities. In April 2020, around 40% of the job seekers from the state returned empty-handed. Curbing the selectively discrimination corporations. Skewed the resource allocation. For example, the gap between the per capita income of, say, Bihar and Tamil Nadu has not narrowed over the last decades. In 2015-16, Bihar's per capita net state domestic product at constant prices was rupees 24,572 against Tamil Nadu rupees 1.11 lakh. एक तरीके से आप इस फैक्ट को याद कर सकते हो या फिर इसको कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हो जहाँ पे आप अपने नोट्स बना रहे हो, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ आंसर में लिख रहे हो, अगर आप उसमें ऐड कर रहे हो फैक्ट या डाटा, तो वो आपके आंसर को मोर अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, अगर फैक्ट और डाटा आप डालोगे तो लगेगा कि हाँ, बंदे ने अच्छे से न्यूज़ को कवर किया है और इस बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, सो इट गिव्स अ गुड लुक टू योर आंसर। सो ऐड सम फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑल्सो इन योर आंसर। आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट्स, उम्मीद करते हैं कि सबको ही याद होंगे। सो आर्टिकल नंबर 14 एंड आर्टिकल नंबर 16 पर्टेनिंग टू राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल नंबर 19 1G प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। सेकेंड वन, फ्यूल सन्स ऑफ द सॉइल सिंड्रोम। ये एक तरीके से फ्रेज़ है और इसको मैं अभी समझाती हूँ। अगर आप मुंबई के हो या महाराष्ट्र, मुंबई के हो सॉरी आप, या फिर कर्नाटका के हो या न्यू दिल्ली के हो या यूपी के हो, कहीं के भी अगर आप हो तो, लेकिन बेसिकली आप मानते तो ये हो कि आप इंडियन सॉइल में हो, यानी कि आप अपने देश में हो। यू आर द सन ऑफ द सॉइल। अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हो तब भी आप ये समझते हो कि हाँ, हम अपने कंट्री में हैं, आई एम द सन ऑफ द सॉइल। बट अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो और वहाँ पे आपके साथ में पार्शलिटी हो रही है तो आपको थोड़ा सा हर्ट होगा कि यार मैं इसी देश का ही एक मतलब सुपुत्र हूँ और मेरे साथ इस तरीके से मतलब पार्शलिटी करी जा रही है। तो सन्स ऑफ द सॉइल यानी कि हम सब एक ही कंट्री में रहने वाले हैं। सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अमंग द सिटीजन्स। स्टिफल द लेबर मार्केट। ठीक है, रिवाइवल ऑफ लाइसेंस राज। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपने पढ़ा होगा ये लाइसेंस राज से रिलेटेड इन हिस्ट्री। नो सॉल्यूशन टू कोर इशूज़। पहला इशू क्या है? लो क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एंड स्किल्स। ठीक है, अगर आप ये कर रहे हो कि नहीं मुझे रिजर्वेशन करना है लोकल्स के लिए, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो मेन इशू है, पहला इशू क्या है? लो क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एंड स्किल्स इन द हरियाणा स्टेट। स्क्यूड जोग्राफिकल डेवलपमेंट। गॉट इट? वे अहेड, ब्रिजिंग द रीजनल इनइक्वलिटीज़, promote the labor intensive industries, focus on the education and skilling incentives. Government should provide the incentives to the industries for the more investment and create the employing environment for the local people. I hope you guys have watched the complete video और मैंने पूरी कोशिश करी है हर आर्टिकल से रिलेटेड आपके साथ सब कुछ शेयर करने की। प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी ये हेल्पफुल हो वीडियो तो आप शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं डेली कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी और वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 2022, तो हम एक तरफ से करते चलेंगे। जनवरी 2022 के पहले सारे आर्टिकल कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद में फरवरी 2022 में हम लोग जाएंगे। सो आई एम कवरिंग ऑल द आर्टिकल्स विच केम इनटू द न्यूज़ from January 2022. So anyone who is going to give any competitive exam related to SSC, UPSC or any exam in 2023, please watch this video, share with your friends and don't forget to click on the like and the subscribe icon. अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मे भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ, और शेयरिंग इज़ केयरिंग एज वी ऑल नो। और इतने बड़े एग्जाम से रिलेटेड अगर मैं आपके साथ में कुछ हेल्पफुल शेयर कर रही हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा इसको सब्सक्राइब करने में और दूसरों के साथ शेयर करने में। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये नोट्स आप लोगों को सबको हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अगर मैं जो चीज़ खुद पढ़ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूँ, और मैं बहुत मेहनत के साथ में ये नोट्स बना रही हूँ। सो प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट मी बाय शेयरिंग और सब्सक्राइबिंग माई चैनल। होप दिस will help you all. Thank you and have a nice day.